Okay, today we'll start with next reaction of the aldehyde, and that is aldol condensation. Aldol condensation. Aldol condensation. Now the very important point over here, this reaction is given by those aldehydes and ketones which contain alpha hydrogen atom. I'll repeat. This means which aldol condensation reaction is given by those aldehyde and ketone which contain alpha hydrogen atom. मतलब अगर हमें aldol condensation reaction करना है तो हमारे पास जो भी aldehyde और ketone रहेगा उनके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन एटम. ना अभी हमें देखना है अल्फा हाइड्रोजन एटम किस तरह से आइडेंटिफाई करना है. अल्फा हाइड्रोजन एटम किस तरह से आइडेंटिफाई करना है. तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से CH3CH double bond. Now this group is called as a aldehyde group. This group is called as a aldehyde group. And aldehyde group contain what? C double bond O. That means they have a carbonyl group. Carbonyl group. So aldehyde group can be also called as a carbonyl group. Now in this group, this carbon atom is called as carbonyl carbon. The carbon of the carbonyl group is called as carbonyl carbon. Oxygen is called as carbonyl oxygen. Oxygen of the carbonyl group is called as carbonyl oxygen, and hydrogen attached to carbonyl group. So this is called as carbonyl hydrogen. Okay, so this is carbonyl group. So carbon can be called as carbonyl carbon, oxygen can be called as carbonyl oxygen, and H can be called as carbonyl hydrogen because they all are attached to carbonyl. Then this is a functional group. Aldehyde group is a functional group. Functional group. Aldehyde group is a functional group, and functional group के बाद जो कार्बन एटम आएगा, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन एटम आएगा उसे आप क्या बोलोगे? अल्फा कार्बन. ये हमारा अल्फा कार्बन है. So these hydrogen are called as alpha hydrogen. This hydrogen is also called as alpha hydrogen, and this hydrogen also called as alpha hydrogen. So what is alpha hydrogen? The carbon atom next to functional group. Carbon atom next to functional group is called alpha carbon atom, and hydrogen atom present on
alpha carbon are called alpha hydrogen atom. I'll repeat up again. The carbon atom next to functional group, मतलब functional group के बाद जो carbon atom आएगा उसे क्या बोलना है? Alpha carbon. And any hydrogen atom attached to alpha carbon are called as alpha hydrogen atom. तो ये हमारा concept है. Okay. तो अभी हमने समझ the first point same कि aldol reaction is given by those aldehyde and ketone which contain alpha hydrogen atom. मतलब अगर हमें ये reaction करना है तो हमारे पास जो भी अल्डिहाइड और कीटोन रहेगा उनके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन. और अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे होता है? फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन आएगा उसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और उस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन आएगा उसे आप क्या बोलोगे? अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे. करेक्ट? यस. नाउ टेक वन बाय वन एग्जांपल. Second point. Okay, in this second point I'll write here aldehydes and ketones, aldehydes and ketone having at least one alpha hydrogen atom, aldehyde and ketone having at least one alpha hydrogen atom in the presence of dilute alkali. हमें अल्कली यूज करना है. कैसे? डाइल्यूट अल्कली लाइक NaOH, Na2CO3 और KOH भी चलेगा. Yeah. These aldehyde and ketone containing at least one alpha hydrogen atom are treated with what? Dilute alkali like NaOH, KOH and sodium carbonate to form beta hydroxy aldehyde. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? मतलब अल्डिहाइड और कीटोन को इनके साथ ट्रीट करने के बाद क्या मिलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड which is called as the aldol. This compound is called as a aldol, and here I can write a note. Formation of aldol is an addition reaction. हम लोग aldol बना दिया और हमारा जो aldol बनेगा वो कौन सा रिएक्शन रहेगा? एडिशन. मतलब aldol बनाने तक हमारा रिएक्शन क्या रहेगा? एडिशन रहेगा. फॉर्मेशन ऑफ एन aldol is addition reaction. Then the next point, third I can say aldol मतलब बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड. aldol undergoes elimination of water molecule. Aldol undergoes elimination of water molecule on warming to give alpha beta unsaturated aldehyde. To gives you what? Alpha beta unsaturated aldehyde, and thus write the fourth one, or write on the next page.
तो यहाँ पे पहले हमें क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड मिलेगा, उसे हम लोग अल्डोल बोलेंगे। और ये अल्डोल में से क्या यानी करेंगे हम लोग, एलिमिनेशन ऑफ वाटर करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ वाटर करेंगे। और फिर हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ओके, एंड नेक्स्ट I can say the overall reaction is the overall reaction of aldol, the overall reaction of aldol condensation is addition elimination, is addition elimination। मतलब फर्स्ट स्टेप में हम लोग अल्डिहाइड को ऐड करेंगे तो एडिशन, और सेकेंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करोगे तो इट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन। नाउ I'll explain all the point one by one, or it is also called as, or it is also called as nucleophilic is also called as nucleophilic addition elimination reaction. It is also called as nucleophilic addition elimination reaction. Okay, so because in the first step we add the two molecule of the aldehyde or ketone, and second step from that we eliminate the molecule of the water, so it is called as a nucleophilic addition elimination reaction. I'll take one example for each now. Suppose we'll have the aldehyde acid. What is the formula for acetaldehyde? CH3CHO. So I'll just write this way: CH3 CHO. I'm just writing this way for our convenience. This is acetaldehyde. CH3CHO is acetaldehyde. Will react with another molecule. What is another molecule? I'll write here CHO. Then I will write here what? CH. This is also acetal. Same, both are the same. Both are same molecule, but for our convenience, the first molecule I've written as what? CH3CHO. Written CH3 alag, and then now we know here this is a functional group. Immediate next carbon atom is called as alpha carbon. Okay, so this hydrogen can be called as alpha. AB alpha, AB alpha. हमें इसका requirement है. See, this is the functional group. So immediate next can be called as alpha carbon, and hydrogen attached to it called as alpha hydrogen. Okay, alpha hydrogen. Now this reaction will perform in the presence of dilute alkali, dilute NaOH. Okay. See, हम यहाँ पे दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन. अभी क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, इधर O के पास. अल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाएगा? O के पास. तो ये कार्बन कहाँ पे चला जाएगा? कार्बन के पास. कार्बन विल गो टू कार्बन. सो एडिशन कहाँ पे हो रहा है? H जा रहा है O के पास, कार्बन जा रहा है कार्बन के पास. सो एडिशन इज अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. एडिशन इज अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो आपको? CH3CH as it is है.
H यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बनेगा OH। और एडिशन देखो H यहाँ पे जा रहा है, C यहाँ पे, डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड, और ये C और C अटैच करेंगे C, और इस C को क्या अटैच है, H H एंड CHO। तो here we have H H CHO. This compound is called as aldol. Aldol क्यों? बिकॉज इस कंपाउंड के पास अल्डिहाइड ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। तो हमें मालूम है अल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों है। तो अल्डिहाइड मतलब ALD है ना, अल्कोहल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, OL। तो अल्डिहाइड ग्रुप भी यहाँ पे है, OH ग्रुप भी यहाँ पे, इसलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है, अल्डोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोक्सी aldehyde. It is also called as what, beta hydroxy aldehyde. बीटा हाइड्रोक्सी क्यों? बस ये हमारा दो फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, OH एंड CHO, लेकिन दोनों में से मेन ये CHO होगा। तो ये अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन आइटम अल्फा, अल्फा के बाद वाला कार्बन आइटम बीटा, और बीटा पे OH आ रहा है, बीटा पे OH आ रहा है, तो क्या लिखोगे आप, बीटा हाइड्रोक्सी और अल्डेहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप, यहाँ पे जो हमें अभी मिला है सेकेंड स्टेप क्या करेंगे हम, CH3 CH OH CH H and CHO, ये कंपाउंड जो हमें मिला, दिस कंपाउंड विल हीट विद वाटर, on warming with water will have which reaction now, elimination, eliminating a water molecule on heating with water। तो यहाँ से एलिमिनेट करोगे OH, यहाँ से एलिमिनेट करोगे H, तो इनके बीच में क्या चला जाएगा, डबल बॉन्ड। तो व्हाट इज प्रोडक्ट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH, correct? And this aldehyde very commonly called as croton aldehyde. It is called as a croton aldehyde, croton the common name, okay, common, and plus we get here H2O, croton aldehyde, plus we get water. Now here this is also called as alpha beta unsaturated aldehyde. Why alpha beta? ये फंक्शनल ग्रुप है, इमीडिएट नेक्स्ट कार्बन आइटम इज अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, and the organic compound containing carbon carbon double bond are called as unsaturated और aldehyde, तो इसलिए अनडेहाइड। तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, इसलिए क्या बोलना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, एंड CHO ग्रुप है, इसलिए क्या बोलोगे, अल्डेहाइड। ओके, तो ये उसका कॉमन नेम है, ये उनका जनरल नेम है। अभी IUPAC, तो देखिए कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम इज कॉल्ड एज अ ब्यूट। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 ENE डबल बॉन्ड ENE, लेकिन aldehyde है तो E should be replaced by what, A, तो हमारे IUPAC। See again, how many carbon atoms are there, 1 2 3 4, 4 carbon atom is butane, बट यहाँ पे 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, तो लोअर नंबर 2 आएगा, तो 2 ENE, and from aldehyde the E should be replaced by what, A, butane। okay, एग्जाम्पल हुआ। आई जस्ट टेक द अदर एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ द मॉलिक्यूल। सेकेंड में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ द वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, इस से क्या बोलते हैं हम लोग, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, आई टेक द एग्जाम्पल, ये अभी अल्डेहाइड का एग्जांपल लिया, वी टेक द एग्जांपल ऑफ कीटोन। ketone, suppose we take example here as CH3 डबल बॉन्ड, कीटोन ही है बट हमने इधर अलग फॉर्म से लिखा, दिस कीटोन इज कॉल्ड एज
acetone. This ketone is called as a acetone. I've written in the different. Okay, acetone. Then second ketone will have here C, double bond O, CH3, and then here I'll write C, H, H, H. This is also acetone. Acetone, acetone, same molecule. See in the first example, two molecules are the same, acetaldehyde, acetaldehyde, but they contain alpha hydrogen. इसके पास भी alpha hydrogen है, इसके पास भी alpha hydrogen. Acetone, acetone. अब यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप है. इमीडिएट नेक्स्ट तो ये अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के ऊपर क्या मिलेगा? अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ पे भी देखो CO ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इमीडिएट नेक्स्ट अल्फा, अल्फा पे अल्फा हाइड्रोजन. इमीडिएट नेक्स्ट अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा है, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन. तो सिंपल है. तो यहाँ पे भी एसीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है. देखो ये हमारा C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन तो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन उसे क्या बोलोगे? अल्फा हाइड्रोजन. ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन हमें एक की जरूरत है. ये अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा O के पास. अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा O के पास, तो एक कार्बन चला जाएगा कार्बन के पास. कार्बन चला जाएगा. कार्बन एडिशन कहाँ पे हो रहा है? डबल बॉन्ड के लेफ्ट और डबल बॉन्ड के राइट साइड में. डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड. करेक्ट. तो अभी देखो ये अल्फा कार्बन चला जाएगा इस कार्बन के पास, और अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास. तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखो इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली लिखोगे तो भी चलेगा, या बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड. नाउ इन दिस रिएक्शन देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? CH3C, CH3C, CH3, H यहाँ पे चला जाएगा तो बनेगा OH. डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा C, और इस C को क्या अटैच है? HH, और आगे क्या है? CO, आगे क्या है? CH3. तो HH, CO, और आगे आ रहा है CH. कंपाउंड मिला, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कीटोन. कीटोन क्यों? बिकॉज यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इट इज कॉल्ड एज अ कीटोन बिकॉज इट कंटेन कीटोन प्लस alcohol. Because it contains the ketone and alcohol group, it is called as a ketol. Okay. और अगर मुझे इस कीटोल का अगर नाम लिखना रहेगा, अगर मुझे नाम लिखना रहेगा, IUPAC नेम लिखना रहेगा, तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा? देखो जिस ये जो कंपाउंड ऐसे हम लोग ऐसा ऐसे भी बोलते हैं, डाई एसीटोन अल्कोहल. दिस कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? डाई एसीटोन. बिकॉज देखो दो एसीटोन को कंबाइन कर दिया, इसलिए क्या बोलोगे आप? डाई एसीटोन. और एसीटोन के साथ यहाँ पे OH ग्रुप भी मिल रहा है, तो इसलिए क्या बोलोगे? अल्कोहल. तो दो एसीटोन के साथ में कंबाइन किया, इसलिए डाई एसीटोन. और इसमें OH ग्रुप मतलब कीटोनिक ग्रुप तो है ही है, लेकिन OH ग्रुप भी दिखा है, अल्कोहल. तो डाई एसीटोन अल्कोहल. अभी हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे. इसका क्या लिखेंगे हम लोग? IUPAC नेम. तो IUPAC नेम कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पे ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन. दो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन एंड OH. कीटोन एंड OH. तो कीटोन और OH में पहला नंबर कीटोन पे जाएगा, तो इसलिए ये हमारा नंबर आएगा 1, ये नंबर आएगा 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. करेक्ट. यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे बिकॉज OH और कीटोन में पहला प्रेफरेंस किसको जाना चाहिए? कीटोन को. तो अभी देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 दो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन भी है, OH है. तो इसे डालना पड़ेगा सफिक्स में. ये आएगा सफिक्स में और ये आएगा प्रीफिक्स में. तो क्या लिखोगे? 4 पे आ रहा है हाइड्रोक्सी, 4 पे आ रहा है मिथाइल. तो मैं पहले क्या लिखूंगा? 4 हाइड्रोक्सी, सॉरी 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल.
बिकॉज मिथाइल में भी प्रीफिक्स में चला जाएगा, तो हाइड्रोक्सी का H और मिथाइल का M, तो दोनों में ये पहले आएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल एंड देन हाउ मेनी कार्बन आइटम 1 2 3 4 5 5 is called as a pentane और सेकेंड कार्बन पे 2 क्या है कीटोन, तो 2ONe is replaced by what ON, तो ये हमारा नहीं है। देखो एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ 1 2 3 4 5 कार्बन, सेकेंड पे कीटोन है और यहाँ पे 4 पे OH है, लेकिन ये मेन ग्रुप है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा सफिक्स में, मतलब एंड में, और हाइड्रोक्सी कहाँ पे चला जाएगा प्रीफिक्स में, मतलब स्टार्टिंग, लोअर फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे 4 पे मिथाइल भी आ रहा है, 4 पे मिथाइल, तो मिथाइल M और हाइड्रोक्सी H, तो पहले क्या आएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल एंड देन how many carbon atom in the chain, 5 carbon atoms, so it is called as a pentane, and because of the ketone the E should be replaced by what ONe, and but ketonic group which carbon atom, second, so 2 point, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो दो कीटोन को ऐड कर दिया तो क्या मिला कीटोल, इसे और क्या बोलोगे आप डायएसीटोन अल्कोहल, और ये उसका IUPAC नेम है, करेक्ट। अभी सेकेंड स्टेप देखेंगे इसका। सेकेंड स्टेप क्या आएगा, देखो CH3 COH ये हमें मिला था, दिस इज ऑन हीटिंग विल अंडरगो व्हिच रिएक्शन, एलिमिनेशन। फर्स्ट स्टेप में एडिशन हुआ था, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग एलिमिनेशन करेंगे, तो सेकेंड स्टेप विल हैव द एलिमिनेशन, सेकेंड स्टेप विल हैव द एलिमिनेशन, ओके। तो एलिमिनेशन में क्या होगा, इस कार्बन से एलिमिनेट करोगे OH और यहाँ से एलिमिनेट करोगे H, OH और H अगर एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखो हमें CH3 डबल बॉन्ड CH और आगे क्या आएगा C डबल बॉन्ड OCH, C डबल बॉन्ड OCH3, रिपीट सी हियर, यहाँ से रिमूव कर दिया OH, यहाँ से रिमूव कर दिया H, तो क्या मिला यहाँ पे CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCH, ओके। ये कंपाउंड हमें मिलेगा, प्लस व्हाट वी हैव गॉट हियर, प्लस वाटर, प्लस क्या मिलेगा हमें वाटर, ओके। अब इसका हमें नाम लिखना है, इसका नाम क्या लिखोगे, देखो ये हमारा कंपाउंड बना, कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे है, तो नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5, 4 पे आ रहा है मिथाइल, तो क्या नाम लिखोगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम मतलब क्या लिखोगे पेंटेन, लेकिन 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, तो पेंट 3 EN, 2 पे क्या आ रहा है ONE, देखो एक बार रिपीट करता हूँ मैं, नंबरिंग राइट साइड से करेंगे, कीटोन को लोअर नंबर आना चाहिए, तो 1 2 3, 3 पे 3 और 4 के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड, 4 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप और 5 कार्बन एटम, तो 4 पे आ रहा है मिथाइल, तो क्या लिखोगे 4 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन आर 5, तो पेंटेन, डबल बॉन्ड बिटवीन 3 एंड 4, तो 3ENE, लेकिन कीटोन है इसलिए E should be replaced by what ON, and ketone on which carbon atom, second, ओके। ये नाम मिला हमें, एंड दिस कंपाउंड वेरी कॉमन, ये जो कंपाउंड में मिला यहाँ पे, दिस कंपाउंड वेरी कॉमनली कॉल्ड एज मेसिटाइल और मिस्टाइल ऑक्साइड, इज आल्सो कॉल्ड एज अ मिस्टाइल और मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड भी बोल सकते, कॉमनली कॉल्ड एज अ मेसिटिल ऑक्साइड, ये उसका कॉमन है। तो हमने देखा 2 अल्डेहाइड हम लोग साथ में ले सकते हैं, 2 कीटोन हम लोग साथ में ले सकते हैं, सेम 2 सेम अल्डेहाइड साथ में ले सकते हैं,
दो सेम कीटोन हम लोग साथ में ले सकते हैं। अभी थोड़ा अलग टाइप का रिएक्शन देखेंगे, दैट इज क्रॉस aldol condensation. Cross aldol condensation. Cross aldol. Now cross aldol means what? Cross aldol का मतलब cross aldol condensation means, इसके बारे में ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में नहीं करना, लेकिन मीनिंग होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस aldol condensation. The cross aldol condensation means what? This reaction occurs between two different aldehyde or two different ketone or one aldehyde and one ketone with each containing alpha hydrogen atom. देखो क्रॉस aldol कभी होगा? That this reaction occurs between टू डिफरेंट, दो अल्डिहाइड के अलग, अभी हम लोगों ने जो रिएक्शंस किया, लेकिन हमारे इसमें क्या था, दो अल्डिहाइड थे लेकिन दोनों सेम थे, दोनों कीटोन थे लेकिन दोनों मॉलिक्यूल सेम थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन टू डिफरेंट अल्डिहाइड, ओके, और टू डिफरेंट कीटोन और one aldehyde and one ketone, but the condition is what? Each containing what? मतलब हर एक के पास क्या होना चाहिए, हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये कंपल्सरी है, मतलब जो भी मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट लेगा उनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना कंपल्सरी, अल्फा हाइड्रोजन एटम चाहिए। ओके, तो अभी कैसे होगा, तो एक रिएक्शन देखो। सो हियर फॉर एग्जाम्पल, if a mixture of acetaldehyde and प्रोपियोनल्डिहाइड, दो अल्डिहाइड अलग अलग, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO एक अल्डिहाइड मैंने ले लिया, एंड प्रोपियोनल्डिहाइड CH3CH2CHO ये दूसरा अल्डिहाइड। सो इफ अ मिक्सचर ऑफ acetaldehyde and propionaldehyde are treated with dilute alkali, पहले डायल्यूट अल्कली से ट्रीट करो, एंड देन on heating gives a mixture of four products. मतलब यहाँ पे देखो कितना कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। देखो कि अगर मैंने दो अलग अलग अल्डिहाइड ले लिए, अलग अलग अल्डिहाइड, तो क्या होगा, आई कैन इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन अगर दोनों अल्डिहाइड अगर अलग रहेंगे और उनको मैं अगर डाइल्यूट अल्कली के साथ अगर ट्रीट करूंगा, ओके, एंड उसको वापस जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हीट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेंगे, फोर प्रोडक्ट्स मिलेंगे।
और ये 4 प्रोडक्ट को हम लोग इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए ये रिएक्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं। मतलब 4 जो प्रोडक्ट आपको साथ में मिलेंगे वो चारों प्रोडक्ट को आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये रिएक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन एक जस्ट खाली एक रिएक्शन लिख के रखता हूँ यहाँ पे, मतलब तो अगर मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख के रखा तो क्या होगा, देखो CH3 CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन। 2 कार्बन आइटम मतलब इथेन, और अल्डिहाइड के लिए ई शुड बी रिप्लेस बाय व्हाट, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। ओके, और प्लस दूसरा मैं लूंगा CH3 CH2 CHO, जिसे आप क्या बोलोगे, प्रोपियोन अल्डिहाइड, और उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। 1 2 3 कार्बन आइटम्स, इट इज कॉल्ड एज अ प्रोपेन एंड ई शुड बी रिप्लेस बाय। तो अगर मैंने 2 अल्डिहाइड अलग अलग वाले ले लिए एंड उनको अगर मैंने उनके साथ क्या ऐड कर दिया, डाइल्यूट NaOH ऐड कर दिया, तो मुझे एक पहला प्रोडक्ट मिलेगा। और बाद में उसे मैंने हीट भी कर दिया, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है, एडिशन ऑफ व्हाट, डाइल्यूट NaOH। और सेकंड में उसको क्या करूंगा, हीट भी कर दूंगा, हीट। मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हमारा स्टेप क्या होता है, देखो अगर 2 अलग अलग अल्डिहाइड अगर हमारे पास रहेंगे तो पहले क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को हम लोग हीट करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट। सिमिलरली देखो 2 अलग अलग कीटोन लोगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, और उस प्रोडक्ट को अगर आप हीट करोगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ पे हमें शॉर्टकट में बताना है, खाली एक रीजन देना है। तो अगर मैंने 2 अलग, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप है, इमीडिएट नेक्स्ट कार्बन आइटम अल्फा है, उसके पास हाइड्रोजन, मतलब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन आइटम है। तो हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 4। तो 4 कौन कौन से प्रोडक्ट है, उनके नाम लिखना है, मतलब वो भी एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन तो ठीक है। तो ये जो हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, सेल्फ कंडेंसेशन। यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, सेल्फ कंडेंसेशन वाला। और दूसरा जो हमें यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा क्रॉस कंडेंसेशन, सेल्फ कंडेंसेशन एंड क्रॉस कंडेंसेशन। सेल्फ का मतलब क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के साथ ही रिएक्ट करेगा। देखो ये दोनों साथ में है, लेकिन इसका मॉलिक्यूल इसके साथ ही रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सेल्फ कंडेंसेशन। इसका मॉलिक्यूल इसके साथ ही रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सेल्फ कंडेंसेशन। तो एसिटाल्डिहाइड विल रिएक्ट विद वन मोर एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड विल रिएक्ट विद वन मोर प्रोपियोनल्डिहाइड, तो उसे क्या बोलोगे, सेल्फ कंडेंसेशन। ओके, और अगर एसिटाल्डिहाइड प्रोपियोनल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसे क्या बोलोगे आप, क्रॉस कंडेंसेशन। तो यहाँ पे देखो अगर ये रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, अगर ये रिएक्ट करेगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, the product which we get will be C, just writing the name of the product जो already हमने किया हुआ है, CH3CH डबल बॉन्ड CH तो ये हमारा प्रोटॉन अल्डिहाइड प्लस, अगर ये सेल्फ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, देखो हमें CH3 CH2 CH3 CH, ये प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज, अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो इसका IUPAC नेम है ब्यूट 2ENL, और इसका IUPAC नेम आएगा 2 मिथाइल पेन 2ENL, ये आएगा, करेक्ट। तो मतलब अगर ये मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे लेकिन इसका नंबर रहेगा 1 और इसका नंबर रहेगा 2, तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, देखो पहले यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH,
इसका नाम रहेगा 2 मिथाइल ब्यूट 2ENL प्लस। और अगर देखो ये पहला था, ये दूसरा, अभी क्या होगा, ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकेंड रहेगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो प्रोडक्ट थोड़ा, I'll just write down the product here, that is CH3 CH2 CH double bond CH and CHO. CH3 CH2 CH double bond CHO, and this is called as a pent 2ENL. pent 2ENL. ओके, तो यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने कि अगर हमारे पास दो अलग अलग अल्डिहाइड रहेंगे या दो अलग अलग कीटोन रहेंगे या एक अल्डिहाइड और एक कीटोन रहेगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, कितने प्रोडक्ट रहेंगे उसमें, 4 प्रोडक्ट रहेंगे। और ये 4 प्रोडक्ट को एक दूसरे से अलग करना बहुत डिफिकल्ट है। चारों प्रोडक्ट के एक दूसरे से अलग करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए हम लोग नॉर्मली क्रॉस अल्डोल रिएक्शन प्रीफर नहीं करते। ओके, नॉर्मली क्रॉस अल्डोल रिएक्शन प्रीफर नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे और एक है, मतलब देखो इनका अगर आपको नाम समझना है तो नाम देखो, इसका नाम क्या आएगा, 1 2, इसको कॉमन नेम तो प्रोटोन मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन आइटम मतलब ब्यूट। डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आएगा तो 2 ENE, और अल्डिहाइड के लिए क्या करना है, E शुड बी रिप्लेस बाय A। ओके, ये होगा। इसके बाद अगर यहाँ पे आपको ध्यान देना है तो देखो ये कार्बन आइटम कौन सा आएगा, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 2 पे मिथाइल आ रहा है तो 2 मिथाइल 1, एक मिनट स्टूडेंट, CH3 एक एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक कार्बन आइटम कम लिख दी, ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो क्या आएगा देखो, CH3 CH2 CH, उसके बाद आएगा आगे डबल बॉन्ड, एक मिनट कैंसिल कर देता हूँ, I'll write here, what is it here, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, ये आएगा यहाँ पे CH3 और ये आएगा CH, ये कंपाउंड है और इसका नाम यहाँ पे लिखा। देखो अभी 1 2 2 पे मिथाइल तो 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम मींस व्हाट, पेंटेन। डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में तो 2EN, और अल्डिहाइड के लिए E शुड बी रिप्लेस बाय व्हाट, A। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये नंबर 1 2 3 4 तो 2 पे मिथाइल 2 मिथाइल 1 2 3 4 कार्बन आइटम मतलब ब्यूट। डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में तो 2 ENE, और अल्डिहाइड के लिए E शुड बी रिप्लेस बाय व्हाट, A। और यहाँ पे इधर 1 2 3 4 5 मतलब पेंट, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड तो 2ENE, और अल्डिहाइड के लिए A। अल्डिहाइड हमारा लास्ट में, इसलिए खाली नंबर नहीं लिखा। इन ऑल द एग्जांपल the aldehyde is present on the last carbon atom. In all the example, aldehyde is present on last carbon atom, that is first carbon atom. इसलिए aldehyde का नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। ओके, तो I just stop it over here and the remaining part we do it in the next lecture. But again, I'll just write down here one more point. I'll write ketones also gives, ketone also gives cross aldol कंडेंसेशन। मतलब दो, जैसे हमने यहाँ पे दो अलग अलग अल्डिहाइड लिए है, जैसे यहाँ पे दो अलग अलग कीटोन्स भी ले सकते हो। आई जस्ट राइट एज अ नोट, जिस तरह हमने दो अलग अलग अल्डिहाइड लिए उसके साथ अलग अलग कीटोन्स भी यूज कर सकते हैं। कीटोन्स आल्सो गिव्स द क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। लेकिन एग्जाम के लिए अल्डोल कंडेंसेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यस, सो आई स्टॉप इट ओवर हियर। ओके, और क्या बात है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देगा,
जिस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, जिस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वही अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा. ओके, यस, थैंक यू.